Hi everyone, this is Veronica, and it's my pleasure here today because I'm hosting one of my friend, my batchmate, who has recently cleared a JKS exam with rank 8. So Akshay Sharma, welcome to Study IQ, and we are really proud of you. And because you have brought laurels to the town, to the family, to everyone. Welcome to Study IQ. Hello, Veronica. Thank you so much. And in fact, we are proud of you too because you are the one who is doing wonders in terms of digital education. The one from Sundarbani and going towards Study IQ and in such a great platform and doing great. So congratulations for that as well. दैट्स बीइंग सो मॉडेस्ट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अक्षय, आज हम बात करेंगे आपकी पूरी स्ट्रैटेजी पे जिससे आपने एग्जाम क्लियर किया, बिकॉज आई एम श्योर इससे हंड्रेड्स ऑफ, जैसे आपको पता ही है जिस तरह के एरिया से हम लोग आते हैं वहाँ पे गाइडेंस और मेंटोरशिप की बहुत कमी हम लोगों को लगती है जब हम लोग भी प्रिपेयर करते थे। सो डेफिनेटली उस पर हम बात करेंगे। आई एम श्योर उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए। Yes, rightly said. The place we hail from, it's a border town. So definitely guidance or सभी problems तो हैं, but thanks to internet, it has been a great leveler. In terms of my educational background, I have studied in Sundarbani only till my class 12. In fact, I need to put special emphasis here because I have studied 11th and 12th in a government school. Generally, there is a misconception that government school में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है. In fact, I remember you were also from government school, government Yeah, girls high I'm also secondary. from government school, yeah. Yes, yes. तो फर्स्टली आई वांट टू क्लियर अ मिसकंसेप्शन कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे नहीं जाते हैं, या इट्स ओनली एंटायरली अपॉन योरसेल्फ, ऑन टू यू कि आप क्या करते हैं. इफ यू पुट एफर्ट, आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं भी जा सकते हैं. So I completed my education from Sundarbani only. Thereafter, I did my BTech graduation from Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, as Bachelor of Technology in Electronics and Communication Engineering. Thereafter, I decided to go for civil services and as a full-time student. So I went to Delhi, joined a coaching institute, and started preparing for civil services. बिल्कुल। अक्षय, अब हम डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस आपने कैसे क्लियर किया। यहाँ पे एस्पिरेंट्स को बताऊँगी, जैसे अक्षय को मैं शुरू से जानती हूँ, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड वी ऑलवेज़ नो ही विल डू समथिंग बिग इन हिज़ लाइफ एंड ऑब्वियसली ही हैज़ डन इट। एंड उनसे सुनेंगे कि किस तरह का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अक्षय का रहा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था? मेंस कम प्रीलिम्स, प्रीलिम्स कम मेंस, व्हाटएवर यू कैन पुट लाइट ऑन दैट। See, as per ऐसा नहीं है कुछ मेरा डिफरेंट स्ट्रेटेजी प्री मेंस या इंटरव्यू के लिए डिफरेंट रहा. इट्स ऑल इंटीग्रेटेड एंड वी ऑलवेज कीप टॉकिंग कि मतलब इट्स ऑल इंटीग्रेटेड. एग्जाम का सिलेबस भी वैसा ही है, पैटर्न भी वैसा ही है. सो फॉर आई स्टडीड द कंटेंट फॉर मेंस, applied it differently for the prelims, because prelims is more of recognizing the options and identifying the correct one, doing more practice for that. And for mains it was similar, looking through previous years papers, having some idea कि कैसे questions आते हैं, कैसे themes आते हैं, making notes of that, and having ready reference notes for them. And this all knowledge is clubbed towards interview. So ये जितना भी आपने पढ़ा है, and the manner in which you are preparing, and the one from your childhood आप कैसे behave कर रहे हैं, ये सब it all inculcates into your personality, and interview is all about personality test. नॉलेज जो आप प्रिपरेशन में एक्वायर करेंगे एंड पर्सनैलिटी जो आप ग्रो की है, आपने कल्टिवेट की है, सो इट विल हेल्प यू टुवर्ड्स दैट. हैविंग सेड दैट, जो डिटेल स्ट्रेटेजी है प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू की, तो प्रीलिम्स का आई थिंक इट विल बी ऑन कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन अगर मैं बार बार सोर्स बताऊं, क्योंकि आई थिंक हर जगह सेम सोर्स ही होते हैं, स्टैंडर्ड सेम सोर्सेज आर सेम, वेदर इट्स लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी और एनीथिंग एल्स, शंकर फॉर एनवायरमेंट और एनीथिंग. सो वही सोर्स थे मेरे भी, एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स. मेंस के लिए भी मोर और लेस वही था, क्लास नोट्स एज वेल एज जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विल पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस, practicing test papers of previous year UPSC papers, previous year, because KS का पैटर्न भी UPSC पैटर्न से अलाइन हो चुका था जिस टाइम मैंने क्लियर किया. And apart from that, mock test of some prominent institutes, वो सब करके, and current affair magazines and all. So it was like that only.
ओके। सो अक्षय, डिटेल स्ट्रैटेजी में हम थोड़ा और डिटेल में इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मोटिवेशन इसका आपके लिए क्या रहा कि आपको सिविल सर्विसेज़ में जाना है? See, in terms of motivation, like I said earlier कि हम गवर्नमेंट स्कूल में थे तो वहाँ प्रोग्राम्स होते रहते थे. And in fact, I remember there was one program on CAPD, something Consumer Affairs and Public Distribution National, and you won first prize in that as well. And the chief guest there was, I think, Sushma Chauhan ma'am, who is currently in higher education, secretary higher education. She was SDM at that time. Yeah. Like those events kept on taking place in all schools. Once there was Simrandeep sir was also there, Yeah. and one person, Udham Das sir, I would like to mention he was, when he cleared exam, and our principal sir called him to the school and introduced him to all of us. जब उन सब का ऑरा हमने देखा और देखा कि कैसी रिकॉग्निशन मिलती है और उनका कैसा इन्फ्लुएंस रहता है एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दे हैड द स्कोप की जो वो डिसाइड करते थे जो सब भी, it had an impact upon all of the administration, not only schools or all. So from there only motivation kept on building. It's not that कि एक single point motivation नहीं था. Then when I came to know about Shahid Iqbal Chaudhary sir, I followed his work. The motivation increased further to higher levels. So it was gradual rather than being at any tip point. डेफिनेटली आज जैसे यू आर टेकिंग नेम्स ऑफ मेनी पीपल एंड टुमारो द एस्पिरेंट्स विल टेक योर नेम आल्सो कि उनका इंटरव्यू देख के हम सिविल सर्विसेज के लिए इंस्पायर हुए, तो डेफिनेटली यू आर एन इंस्पिरेशन. या So it will be my gratefulness in case that happens, if I am able to put that much emphasis or that much impact on aspirants. या सो अक्षय, अब मैं आपसे बात पूछूंगी कि प्रीलिम्स आपने यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर किया है और जेकेएस का एग्जाम क्लियर किया है. कुछ डिफरेंस अप्रोच में यूपीएससी या इसमें या सिमिलैरिटीज आपको नजर आती हैं? I think there are not much differences apart from that कि जो KAS या JKS जो भी है, इसमें JNK का पार्ट जो है एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है. Apart from that, syllabus is same. Just only मेंस में एक लैंग्वेज पेपर नहीं रहता जो यूपीएससी में होता है. बाकी सब कुछ everything is similar. And in fact, I would like to mention here that कि जो हमारे पेपर्स थे मेंस के, they were highly inspired from the previous year UPSC papers as well. So it is all similar pattern as per UPSC. Nothing, not a major difference. Okay. So उसके बाद जब हम मेंस पे जंप करते हैं, या उससे पहले कोई सोर्सेज आप मेंशन करना चाहेंगे जहां से जो जेएनके वाला पोर्शन है वो हमारे एस्पिरेंट्स कवर कर सकते हैं? Actually, I studied from one coaching institute notes, but I don't remember that institute's name right now. बट इस तरह का मटेरियल अवेलेबल है? Yes, yes, market में available है. Apart from that, there was one Arihant Publications book, Know Your State. Now it's UT, of course, but it was Know Your State JNK. I referred that book. It helped me a lot. Apart from that, there was one book on security issues by Brigadier Pramathesh. It was regarding demilitarization in JNK, and it also provided me a brief idea about history, culture, and geography of JNK. So it was mix of all. Apart from newspapers, daily newspapers of Daily Excelsior especially. Okay. सो मेंस और प्रीलिम्स में जैसे आपने बताया कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमको पढ़ना शुरू करना चाहिए, तो आंसर राइटिंग के लिए आप कुछ स्पेशल बताइए कि मेंस में आपका क्या अप्रोच रहा, किस तरह के आंसर्स लिखने चाहिए? आंसर राइटिंग, आई जॉइंड वन टेस्ट सीरीज, सो वहां से मुझे इनपुट्स मिला कि मेरी आंसर्स में क्या लैकिंग है. उससे पहले भी आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑफ माय ओन, और आई थिंक सब वेबसाइट्स पे मॉडल आंसर्स, वेदर इट इज स्टडी IQ, वेदर इट्स इनसाइट्स IAS, वहां पे मॉडल आंसर्स अवेलेबल रहते हैं जो आपका मेंस का क्वेश्चंस हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं. आई रेफर्ड दोज of my own institute. I studied at Waziram. I studied those model answers as well. So I wrote my answers. Starting they were very pathetic, to be frank. But with time, when I started consistently improving upon my mistakes or my shortcomings, so I could build upon the quality that was required. So you apart from that, continuous practice. Yes, definitely practice. I think इस इंटरव्यू में I will more than 10 times I will stress on practice part. अभी आगे भी मैं बहुत बार बोलने वाला हूँ कि practice is the most important part, whether it's prelims, whether it's mains or whether it's interview. The most important part is practice.
ओके। अब हम आते हैं कुछ उन पोर्शंस पे, जैसे सबको मटेरियल सोर्सेज ये सब पता रहता है, बट देयर आर सर्टेन एरियाज लाइक टाइम मैनेजमेंट, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कितना टाइम दें, तो उसको आप किस तरह बताना चाहेंगे? सी इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो है कि आप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगा, बिकॉज यू विल हैव वेरी लेस टाइम एट योर डिस्पोजल टू प्रिपेयर फॉर दैट। आई वाज प्रिपेयरिंग फुल टाइम, तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट का ये था कि आई हैड फुल डे एट माय डिस्पोजल, तो मुझे अकॉर्डिंगली प्लान करना होता था। तो स्टार्टिंग में व्हेन आई हैड कोचिंग क्लासेस, तो आई हैड लेस टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, बट व्हेन जब क्लासेस खत्म हुई उसके बाद आई हैड टाइम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना प्लान बनाइए, एक लॉन्ग टर्म प्लान कि आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में क्या कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है। टू एग्जीक्यूट दैट प्लान यू नीड टू हैव वीक बाय वीक स्ट्रेटेजी, और आई वुड से प्लान और अ डेली शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। प्रेफरेबली आप उसको रिटन में बनाइए, क्योंकि अगर आप माइंड मैप बनाएंगे अपने माइंड में ही रखेंगे तो इट विल बी मोर ऑफ लॉस्ट समवेयर। जब आप किसी और जगह बिजी होगे तो यू विल फॉरगेट कि मुझे ये सब करना था। अगर आपने कहीं रिटन में रेडी रेफरेंस रखा है तो ट्राई टू वर्क अपॉन योर प्लान स्टार्टिंग में। नो डाउट 50% भी अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपना प्लान तो इट विल डू वंडर्स फॉर यू। सो आई विल स्ट्रेस अपॉन प्लानिंग पार्ट कि आप अपना प्लान कीजिए लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट, तो आप क्या नोट अकॉर्डिंगली टाइम। ओके, ओके। सो क्या आप नोट्स बनाते थे? To be honest, starting में I had class notes for reference, हुँ, और I was very reluctant on making notes for by myself. लेकिन उसका I paid heavily for that. हुँ। मुझे I flum I failed in certain instances like UPSC first attempt, second attempt. Then I realized that what was lacking was notes making, because नोट्स आपको एक रेडी रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। जब आपको एग्जाम से एक दिन पहले या एक वीक पहले आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना है, योर ओन नोट्स, योर ओन शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू फॉर दैट। आप वापस से बुक पढ़ने नहीं जा सकते, आप एग्जाम से एक दिन पहले सारी बुक्स कवर नहीं कर सकते। सो नोट्स आर वेरी क्रूशियल। और बाद के अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ हूँ, आई प्रिपेयर्ड नोट्स, थीम वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स, वेदर इट इज फॉर प्रीलिम्स या किसी भी सब्जेक्ट के थे या किसी भी फेज पे थे, मेंस पे थे या इंटरव्यू पे थे, मैंने प्रिपेयर किए नोट्स एंड दे हेल्प मी। राइट। सो अक्षय, ये आपका पहला अटेम्प्ट था, यानी कौन-सा अटेम्प्ट था जिसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है? केएस में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। न्यू पैटर्न जो था इसमें, सिंस ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट प्रीवियस पैटर्न वाज ऑफ 2 ऑप्शनल जो erstwhile यूपीएससी का पैटर्न होता था। तो इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई अपीयर्ड इन मेंस बट कुड नॉट क्लियर मेंस, बट दिस इज वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन केएस। डेफ़िनिटली जब रिज़ल्ट आता है हम टॉपर्स को देखते हैं, जैसे आपका रैंक 8th आया है, बहुत अच्छा लगता है, वॉव! रैंक 8। बट उसके पीछे बहुत एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। काफ़ी लंबे समय से एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फेलियर्स देखते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने कुछ गलतियाँ की, कि नोट्स नहीं बनाए, यू हैव टू पे फॉर दैट, एंड देन आपने नोट्स बनाना शुरू किया। ऐसे कुछ मिस्टेक्स आप काउंट कर सकते हैं जिन पे आपने इम्प्रूव किया और उसका फ़ायदा आपको इस रिज़ल्ट में दिखा? यस इंडीड। फॉर दैट कि मैं अपना बताना चाहूँगा कि मेरी जो जर्नी थी, आई स्टार्टेड इन 2016 एज अ फुल टाइम स्टूडेंट फॉर सिविल सर्विसेज। तो जो फर्स्ट मेरा टारगेट था वो यूपीएससी था, करंटली है भी अभी, होपफुली कभी इन केस आई गेट चांस टू क्लियर दैट। सो डेफ़िनिटली। बट उसमें ये था कि अपार्ट फ्रॉम माय क्लास, जब मैं एग्जाम में अपीयर हुआ तो आई वाज वेरी होपफुल कि फर्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स क्लियर करूंगा, बट एट लास्ट जब रिजल्ट आया माय नेम वाज नॉट इन द लिस्ट फॉर द वंस हु हैड क्वालिफाइड प्रीलिम्स। तो व्हेन एक साल बाद मार्क्स आए तो आई केम टू रियलाइज बट दैट इट वाज वेरी नैरो मार्जिन, 3 और 4 मार्क्स का मेरा डिफरेंस था। बट उस टाइम में आई अपेयर्ड फॉर केएस फर्स्ट अटेम्प्ट, उस टाइम में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। बट सिंस आई वाज कॉट इन बिटवीन 2 डिफरेंट पैटर्न्स फॉर द यूपीएससी एज वेल एज केएस, तो वहां पे आई ऑल्सो पेड फॉर राइडिंग 2 बोट्स एट सेम टाइम। तो वहां पे भी I paid at the cost of not qualifying UPSC prelims again, as well as not qualifying JKS mains. At that time, I realized that I need to focus at least at one exam rather than like कि दोनों एग्जाम के एक टाइम पे फोकस करना। सो बट लकीली आई वुड से कि जो JKS का पैटर्न था, इट वाज अलाइंड ऑन यूपीएससी पैटर्न, सो इट वाज हेवन सेंट फॉर मी। तो मुझे लगा कि आप मुझे इसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है,
So I started preparing in that manner, and the mistakes that I had made in my previous attempts, मुझे जो जैसा कि मैंने बताया कि notes making I paid with that, practice में ज़्यादा नहीं करता था पहले attempts में, but in these attempts मैंने ensure किया कि I solve as many as mock test paper that I can. So luckily in that attempt, third attempt, I could clear UPSC prelims as well as KS. I reached up to interview stage in UPSC in my third attempt, and though could not qualify, but that learning, that knowledge helped me in KS, and fortunately I could qualify KS. ओके, नोट्स मेकिंग की आपने बात कही थी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स. किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए? जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, बेसिकली दीज क्वेश्चंस कम टू अस थ्रू एस्पिरेंट्स. दे आस्क अस वेरियस क्वेश्चंस कि नोट्स कैसे बनाए जाएं. सो व्हाट डू यू सजेस्ट? Yes, I can realize I have been an aspirant in all those years. Still, I am an aspirant as well. So notes में सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमको आती है एस्पिरेंट्स को, ये है कि कैसे बनाया जाए, रादर की न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए जाएं या ना बनाए जाएं. तो उस चीज में आई वुड लाइक टू क्लियर कि पहले फर्स्ट रीडिंग में आप कभी भी नोट्स मत बनाइए. दिस इज रिगार्डिंग आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटीज हैं. डू रीड इट फर्स्ट टाइम, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, दूसरी बार भी पढ़िए, देन ट्राई टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. कई बार होता है हम फर्स्ट रीडिंग में ही सब कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, देन वी कांट सेग्रीगेट कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं. एटलीस्ट 2 रीडिंग दीजिए उस सोर्स की, स्टार्ट अंडरलाइनिंग एट द सेकंड इंस्टांस, देन एट द थर्ड इंस्टांस आप ट्राई टू जॉट डाउन शॉर्ट नोट्स, लाइक कि एक बुलेट पॉइंट्स या ऐसा कुछ लिखिए कि जिसको आप पढ़ के, रेफर करके, कीवर्ड्स को पढ़ के यू कैन अंडरस्टैंड द होल क्रक्स ऑफ द थिंग. तो ट्राई टू मेक नोट्स इन दैट फॉर्मेट ओनली. और जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाएंगे, योर नोट्स शुड बिकम थिनर एंड थिनर, इन दैट सेंस कि अगर दिस टॉपिक के आपने स्टार्टिंग में 2 या 3 पेज के नोट्स बनाए, इट शुड डिसॉल्व डाउन टू हाफ अ पेज और इनफैक्ट 3 to 4 लाइन्स. अगर आप एग्जाम डे से पहले तक इतने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वो कब आएंगे? जब आप मल्टीपल रीडिंग्स करेंगे किसी चीज की, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीजें आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ चीजें जो आपको जरूरत होगी रेडी रेफरेंस के लिए. तो सो आई वुड फोकस ऑन कि मल्टीपल रीडिंग्स कीजिए, ट्राई टू कर्टेल योर नोट्स की आपका जितना भी नोट्स बना है स्टार्टिंग में उसको आप शॉर्ट डाउन कीजिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. नो डाउट आपके टॉपिक जब बढ़ते जाएंगे तो क्वांटिटी नोट्स की बढ़ेगी. उस चीज में आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. डेफिनेटली सिलेबस ज्यादा है, नोट्स उस टर्म से वॉल्यूम में बढ़ेंगे, बट जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स है या थीम का नोट्स है, इट शुड बिकम थिनर एंड थिनर, शॉर्ट एंड शॉर्ट विद पासिंग टाइम. ओके, और करंट अफेयर्स पे आते हैं. करंट अफेयर्स के क्या सोर्सेज आपके रहे और किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए? क्योंकि मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का भी रहता है, आप उनको मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहली चीज है कि न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक नेशनल न्यूज़पेपर प्रोमिनेंट, इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आप इनमें से कोई एक रेफर कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस. यू नीड नॉट टू मेक नोट्स ऑफ आउट ऑफ इट ना. आपको जरूरी नहीं है कि आप डेली उनमें 2-2 घंटे लगा के आप नोट्स बनाते रहें या एडिटोरियल से बनाते रहें, वैसा कुछ नहीं करना है. यू कैन रीड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस. आपको स्टोरी बाय स्टोरी किसी भी न्यूज की डेवलपमेंट पता चलती जाएगी, इश्यूज पता चलते जाएंगे. उसके साथ ही आप एक मंथली कंपाइलेशन किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की जो है, आप कंपाइलेशन लीजिए. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो कंपाइलेशन पढ़ेंगे, इट विल बिकम इजियर फॉर यू कि आपको एक रेडी रेफरेंस मिल जाएगा. अगर आप चाहें तो वहां से नोट्स बना सकते हैं. अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे मिल रहे हैं, किसी चीज में स्टैट्स मिल रहे हैं, तो यू कैन मेक नोट्स ऑफ देम. या कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा एडिटोरियल आया जो आपको लगता है कि इट इज वेरी गुड, मेरे को ये सोर्स और कहीं नहीं मिलने वाला, देन यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ. बाकी करंट अफेयर्स के लिए एनी न्यूज़पेपर आउट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, एंड एनी वन कंपाइलेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट. ओके, अब जैसे डिजिटल एजुकेशन का भी एक बहुत रोल रहता है, उसको किस तरीके से एस्पिरेंट्स को यूज करना चाहिए? Definitely, in fact, digital education has become a necessity in present times, and it has bridged the divide between haves and have-nots. तो जरूरी नहीं है हर कोई एफर्ट करे कि मैं जाके ऑफलाइन कोचिंग ले पाऊँ. किसी के पास टाइम नहीं रहता, some have financial crunches as well. तो digital education has been a leveler, and सब जगह पे जो है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब अपना प्रोवाइड कर रहे हैं. इनफैक्ट आपको
फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, कुछ जगह आपको बहुत ही नॉमिनल पेमेंट करनी है. सो डिजिटल एजुकेशन आई वुड से कि हैज come out as emerged as a very important platform and very crucial platform for all those preparing for civil services. राइट। सो अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक हम पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करें, ऑल तो सबको सोर्सेज पता होते हैं। रिसेंटली एक ट्रेंड मैंने एस्पिरेंट्स में देखा है, क्योंकि अक्षय प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, यू नीड लॉट ऑफ Definitely. पेशेंस यहाँ पे रहने के लिए, कि कॉन्टिन्यूसली आप प्रिपेयर करते रहें। सबकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, एंड नॉट टू मेंशन व्हाट प्रॉब्लम्स वी हैव सीन, आपने भी बहुत कुछ फेस किया है। तो वो मोटिवेशन आपने, बिकॉज आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल इट टू द एस्पिरेंट्स, कि वो मोटिवेशन किस तरीके से बनाए रखें कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। सी आई वुड से कि अगर आपका गोल सिंसियरली आपने अपना गोल परस्यू करना है, अगर आपका डायरेक्ट अटैचमेंट है उस गोल के साथ, यू विल फाइंड एनी वे फॉर आउट ऑफ इट. मतलब आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. अगर आपका कुछ रियल रीजंस हैं कि लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल, तो आपको डेफिनेटली कहीं भी आप बाहर देखेंगे, डे टू डे इंस्टांसेस, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, या तो यू विल डेफिनेटली गेट मोटिवेशन आउट ऑफ इट. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट. कई बार आप देखेंगे, आप बोलेंगे सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ खराब है, यू गेट डिप्रेस्ड. एंड अगर आपकी अप्रोच है कि मुझे जाके ये चीजें सुधारनी है, आई कैन, इफ आई कैन वर्क टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ पीपल, इट विल बी अ मोटिवेटर फॉर यू. सो अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं और आपको लगता है कि कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस कि डिस्पाइट दोज हर्डल्स, हाउ कैन यू बिल्ड अपॉन योर पर्सनैलिटी. अगर आप उन हर्डल्स को, उन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर जाओगे, डेफिनेटली इट विल बिल्ड अपॉन योर पर्सनैलिटी. एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा आपकी पर्सनैलिटी में. आप सर्विस में जाके छोटे मोटे चैलेंजेस से घबराने वाले नहीं है, क्योंकि सर्विस लाइफ में भी जाके ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो एवरीथिंग विल बी, मतलब ऑल विल बी सर्व्ड ऑन अ प्लेटर. तो अगर आपको अभी कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो टेक इट एज अ लर्निंग फेज. आप उनको ओवरकम करना सीखिए, और वो आपको सर्विस में हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आएंगे आपको सर्विसेज में. तो आई वुड से कि मोटिवेशन हर किसी की डिफरेंट है, इंटरनल है. अगर आपकी रियल मोटिवेशन है, तो आपको किसी भी आउटर सोर्स से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. बट हाँ, हेयर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि डिस्पाइट मेकिंग सिंसियर अटेम्प्ट्स आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि टाइम बाय टाइम, ईयर बाय ईयर कंपटीशन हैज बीन बिकमिंग टफर. सो आपके पास बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर है. इन दैट केस, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ, and like if you are sincerely pursuing, someday or other you will clear. अगर ऐसा नहीं होता, तो सिविल सर्विसेज इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ ना. यू कैन, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज आ चुकी है, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, आप यू विल एक्सेल इन दैट सेक्टर. आई हैव सीन लॉट मैनी पीपल एक्सेलिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स हु वर वंस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स. राइट। सो या दिस इज़ अ वंडरफुल मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत लोग बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं कि सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द एंड, बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को उस लूप में रख रहे हैं, यू शुड कीप प्रिपेयरिंग, राइट। सो अक्षय, जाने से पहले एक मैसेज कोई भी जो आपको अपने लिए मोटिवेटिंग लगता हो, या कुछ भी यू वांट टू टेल टू आवर एस्पिरेंट्स। आई वुड से कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन. हम लोग जब भी किसी टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ते थे मैगजीन्स में, या उसमें, वहां पे 3 वर्ड्स आई वुड, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड परसिवरेंस. एंड उस टाइम पे पढ़ने में वो रियलाइज नहीं होता, बट व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी, यू लिव दोज वर्ड्स, यू लिव द स्पिरिट ऑफ दोज वर्ड्स. सो मैं यही कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. परसिवरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग जर्नी. कुछ 1 साल का एग्जाम का प्रोसेस है, कई बार 1 साल से ज्यादा भी लगते हैं. आई एम अ केस है. तो आपको उस चीज में हार नहीं माननी है. पेशेंस रखिए. समटाइम्स ऐसा भी होगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि आपको लगता है कि यू आर टिकिंग ऑल थिंग्स करेक्टली, मतलब आप सब चीजें कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, आप नोट्स भी अच्छे से बना रहे हैं, स्टिल आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा. बट कहीं ना कहीं, ट्रस्ट में, आप अगर डीपली इंटरनलाइज कीजिए, अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कहाँ कोई परेशानी है, यू विल फाइंड कि कहीं ना कोई लूप होल रह रहा है. अगर आप सिंसियरली इसके लिए करेंगे प्रिपेयर ना, तो यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली समडे और अनदर. और ये भी बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली कि सिविल सर्विसेज इज नॉट द ओनली थिंग.
Definitely it is the most lucrative sector at present, आगे भी रहने वाला है, but it is not the only thing in life. अगर in case आप नहीं clear कर सकते, move ahead. अगर 2-3 साल के बाद आपकी और compulsions भी होंगी, आप किसी और sector में अच्छे हैं, आप वहां जाइए, you will do wonders there as well. So study sincerely. I wish success to all of those who study sincerely. अगर आप पढ़ेंगे, I wish success कि आप जल्दी से जल्दी you qualify. So in case ऐसा नहीं भी होता, तो don't get demoralized, don't get bogged down. You will excel in any sector where you go. Thank you so much, Akshay, for these wonderful words. I'm sure it will inspire a lot of students. Thank you for being with us. It was great chatting with you over a formal platform, and all the best for your future. Thank you so much, Veronica. It was indeed a pleasure talking to you. Okay, bye bye.